ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال قلت أي الناس أحب إليك قال عائشة فقلت من الرجال فقال أبوها قلت ثم من قال ثم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فعد رجالا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ 17 رمضان المبارک یوم وفات ہے ام المومنین حبیب خدا صدیقہ کائنات صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں احادیث پاک میں بے شمار مناقب اور فضائل موجود ہیں۔ ہمارا آج کا درس حدیث 17 رمضان المبارک کی مناسبت سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مقام اور منقبت اور آپ کے مرتبے کے بارے میں ہوگا۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی عائشہ ہے، آپ کا لقب صدیقہ اور حمیرہ ہے، آپ کا خطاب ام المومنین ہے اور آپ کی کنیت اپنے بھانجے عبداللہ کے نام پر ام عبداللہ ہے۔ آپ کی ولادت کے بارے میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے الاصابہ فی تمییز الصحابہ کی 4 جلد میں 2 قول نقل کیے، نمبر 1 سن 4 نبوی اور نمبر 2 سن 5 نبوی، یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 44 یا 45 سال تھی، اس وقت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اللہ رب العزت نے آپ کو بچپن میں ہی غیر معمولی حافظہ، ذہانت، حاضر جوابی، معاملہ فہمی کی نعمت عطا فرمائی تھی، جس کا تذکرہ احادیث پاک کی کتابوں میں مذکور اور موجود ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کتاب التفسیر میں نقل کیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں لقد انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ وانی لجاریۃ العب بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر، یعنی جب اللہ رب العزت نے مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیت کریمہ بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر نازل فرمائی، اس وقت میں چھوٹی بچی تھی اور میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ، چھوٹی بچیوں کے ساتھ کھیل میں مصروف تھی، یعنی بچپن کی حالت میں ہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی وحی کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے محفوظ فرمایا، اور بعد میں امت کے سامنے اس کا اظہار فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فلاں آیت اتری تو میں اس وقت چھوٹی بچی تھی، لیکن وہ آیت کریمہ مجھے آج بھی یاد ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے آپ کو بچپن میں ہی غیر معمولی ذہانت کے ساتھ ساتھ حاضر جوابی کی نعمت بھی عطا فرمائی تھی، جس کا اندازہ صرف ایک حدیث پاک سے آپ لگا سکتے ہیں۔ مشکاۃ شریف جلد 2 صفحہ 290 پر حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں بچپن کی حالت میں چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ساتھ، مٹی کے کھلونوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو آپ نے میرے کھلونوں کو دیکھا، ان کھلونوں میں ایک گھوڑا تھا جس کے 2 پر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ گھوڑا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ پروں والا گھوڑا، یعنی گھوڑے کے تو پر نہیں ہوتے، گھوڑا تو اڑتا نہیں ہے بلکہ گھوڑا تو اپنے پاؤں کی وجہ سے زمین پر چلتا ہے، یہ آپ کا کیسا گھوڑا ہے جس کے پر ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فوراً جواب دیا، فرمایا یا رسول اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر تو موجود تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے
इस फौरन बरजुस्ता जवाब पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्करा पड़े। इससे एक बात तो ये साबित हुई कि हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा बचपन में ही हाजिर जवाब थी, और दूसरी बात ये भी मालूम हुई कि छोटी उम्र में ही हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को पहले अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के वाक़यात याद थे। ये तभी हो सकता है जब घरों में कुरान और सुन्नत की तालीम हो, जब बड़े घरों में अंबिया की बातें करेंगे, हजरत सहाबा किराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन की बातें करेंगे, अपने बुजुर्गों और अकाबिरीन की बातें करेंगे, तो आने वाली नस्ल के जहन में ये बात बैठेगी कि हमारे असलाफ कौन थे, हमने किन के नक्शे कदम पे चलना है। इस पे एक बात मेरे जहन में आ गई, वाकया मेरे जहन में आ गया। कहते एक मरतबा स्कूल में एक उस्ताद ने पढ़ाते हुए अपनी क्लास के तालिब इल्मों से, स्टूडेंटों से पूछा कि बेटो ये बताओ तुम बड़े होकर क्या बनोगे। तो हर बच्चे ने अपने अपने जहन के मुताबिक जवाब दिया, उस्ताद जी मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं वकील बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं मुल्क का मुहाफिज बनूंगा, मैं पायलट बनूंगा, मैं फुला बनूंगा, फुला बनूंगा। एक छोटा बच्चा मासूम 5-6 साल की उम्र वाला खड़ा हुआ। उस्ताद ने पूछा कि बेटे आप बड़े होकर क्या बनोगे। तो उस छोटे बच्चे ने जवाब दिया कि उस्ताद जी मैं बड़े होकर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी बनूंगा। उस्ताद हैरान हुआ, कहा बेटा तुम्हें पता है सहाबी किसे कहते हैं। कहा उस्ताद जी मुझे सहाबी की तारीफ का नहीं पता कि सहाबी की तारीफ क्या है। बेटा ये तुम्हें पता है कि अब सहाबी कोई नहीं बन सकता। कहा उस्ताद जी मुझे ये भी मालूम नहीं है। उस्ताद ने सवाल किया बेटा इस बच्चे को इंजीनियर की तारीफ का पता है कि इंजीनियर किसे कहते हैं, और इंजीनियर को इसने देखा है तभी कहता है कि मैं इंजीनियर बनूंगा। डॉक्टर किसे कहते हैं इनको पता है, इन्होंने डॉक्टरों को देखा है तो कहा हम डॉक्टर बनेंगे। न तुम्हें सहाबी की तारीफ का पता, न तुम्हें ये पता है सहाबी किसे कहते हैं, न तुमने किसी सहाबी को देखा, और न ये मालूम है कि अब कोई सहाबी नहीं बन सकता। तुमने ये जवाब कैसे दिया कि मैं बड़ा होकर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सहाबी बनूंगा। उस छोटे मासूम बच्चे ने जवाब दिया उस्ताद जी जब से मैंने होश संभाला है, यानी बात मेरे कानों में टकरानी शुरू हुई है, मैंने बात को लेना शुरू किया 2-2.5 साल की उम्र, तो मेरी माँ हमेशा मुझे सहाबा किराम के किस्से सुनाती है, सहाबा किराम के वाक़यात सुनाती है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनका ताल्लुक बताती है, दीन के लिए और साहिब दीन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उनकी कुर्बानियों का तज़किरा करती है। मुझे मेरी माँ ने इन 3-4 सालों में सहाबे किराम के इतने ज़्यादा वाक़यात सुनाए, मेरा दिल करता है कि मैं भी बड़े होकर उन्हीं की तरह बनूं, मैं भी सहाबी बनूं। अब वो बच्चा सहाबी बन तो नहीं सकता, लेकिन इतनी बात हमें समझ आ जानी चाहिए, वालिदैन को खुसूसन माओं को ये बात समझ आ जानी चाहिए कि अगर हम ये चाहें कि हमारी आने वाली नस्ल वो सही रुख पर चले, सही अकीदे पर चले, इबादत का एहतमाम करे, तो फिर हमें चाहिए कि अपने घरों में दीन का एहतमाम करें। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके सहाबा, उम्मत के अकाबिरीन और असलाफ के तज़किरे करें। बच्चों को ये चीज़ें सुनाएंगे, इन लोगों का तज़किरा करेंगे तो बच्चों का ज़हन बनेगा कि हमने भी बड़े होकर इन्हीं की तरह बनना है। हमारे हजरत दामत बरकातुहुमुल्लाह अलैहि इस पर बड़ा प्यारा जुमला फरमाते हैं कि हम में से हर बंदा आज ये चाहता है कि मेरी औलाद ऐसे हो जैसे हजरत हसन हजरत हुसैन थे रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, उन्हीं की तरह नेक हो, वालिदैन की फर्मा बरदार हो, दीन का दर्द रखने वाली हो। लेकिन हम में से कोई भी अली और फातिमा का किरदार निभाने के लिए तैयार नहीं है, यानी हम खुद अली और फातिमा के नक्शे कदम पर नहीं चलते। और ख्वाहिश ये होती कि औलाद हसन व हुसैन हो। अगर वालिदैन हजरत अलीउल मुर्तज़ा और खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा के नक्शे कदम पे चलेंगे तो फिर औलाद हजरत हसनैन करीमैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा के नक्शे कदम पे चलेगी। खैर, मिशकात शरीफ की सदी से पाक से पता चला कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को बचपन में ही हाजिर जवाबी की नेमत अता फरमाई थी। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के कई एक फ़ज़ाइल हैं। आपकी सबसे बड़ी खूबी और सबसे बड़ा कमाल ये है कि आप जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबिया हैं। ये इतना बड़ा एजाज़ है कि दुनिया के सारे एजाज़ात हजरत अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के बाद इंसानों में इस एजाज़ के बराबर नहीं हो सकते। सहाबियत का मुकाबला दुनिया का कोई मकाम
चाहे वो विलायत का हो, चाहे वो शहादत का हो, चाहे वो इल्म का हो, चाहे वो रियाजत का हो, दुनिया का कोई भी मकाम इंसान देख ले, सहाबी रसूल होना, अल्लाह के रसूल का शागिर्द होना, बराह रास्त अल्लाह के नबी के साथ ईमानी ताल्लुक हुजूर की ज़िंदगी में कायम करना, ये एक ऐसा एजाज़ है जिसका मुकाबला दुनिया की कोई नेकी भी नहीं कर सकती, कोई मकाम भी नहीं कर सकता, जिसे हज़रत इमाम नववी रहमहुल्लाह ने शरह मुस्लिम में इन अल्फाज में जिक्र फरमाया कि फ़इन्न मज़ियत अस्सुहबती ला यादिलुहा अमलुन, अल्लाह के नबी का सहाबी होना ऐसा अमल है जिसका मुकाबला दुनिया का कोई और अमल नहीं कर सकता। तो आप अल्लाह के रसूल की सहाबिया हैं। सहाबिया होने के बाद आपका दूसरा सबसे बड़ा एजाज़ ये है कि आप हुजूर की बीवी हैं, आप हुजूर की ज़ौजा हैं, उम्मुल मोमिनीन हैं, अल्लाह के नबी का हरम है, नबी के घर में आने वाली और नबी के घर को आबाद करने वाली हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। आप खुद फरमाती हैं, रिवायात मुख्तलिफ हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपका निकाह हुआ, एक रिवायत के मुताबिक आपकी उम्र 6 साल, एक के मुताबिक आपकी उम्र 7 साल थी, और एक रिवायत के मुताबिक जब आपकी रुखसती हुई तो आपकी उम्र मुबारक उस वक़्त 9 साल थी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के नबी की बीवी है, उम्मुल मोमिनीन है, हबीब खुदा है। सिर्फ बीवी नहीं है बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहेती और महबूब तरीन बीवी है, जिसका तज़किरा मुख्तलिफ रिवायात में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। एक हदीस पाक बुखारी शरीफ बाब कौलिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ कुन्तु मुत्तखिज़न खलीला, इसके तहत नकल की गई। हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और हाजिर होकर मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अहब्बु अय्युन नासी अहब्बु इलैका, इस रुए जमीन पर आपको सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे है, सबसे ज्यादा महबूब आपका कौन है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सबसे पहला नाम लिया, आपने फरमाया आयशा। इस कायनात में मुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से है। हजरत अमर फरमाते, मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मिनर रिजाल, हजरत आयशा तो औरत है, आपकी बीवी है, मर्दों में आप सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करते हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबूहा, मर्दों में मुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत हजरत आयशा के वालिद यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से है। आगे फिर अल्लाह के नबी ने हजरत उमर का नाम लिया, चंद और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन का नाम लिया। तो औरतों में सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह के रसूल को हजरत आयशा से है, और मर्दों में सबसे ज्यादा आपको मोहब्बत हजरत आयशा के वालिद खलीफा अव्वल खलीफा बिला फस्ल जानशीन रसूल सबसे पहले मुसलमान हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से है। इसकी मुहद्दिसीन ने तशरीहात की है इस हदीस पाक की। हमारे मुर्शिद, हमारे शेख उस्ताद मोहतरम मुतकल्लिम इस्लाम हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास मोहम्मद साहब दामत बरकातुहुल आलिया इस हदीस पाक की तशरीह में बड़ी प्यारी बात फरमाते हैं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा औरतों में मोहब्बत हजरत आयशा से क्यों थी, और मर्दों में सबसे ज्यादा मोहब्बत आपको हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से क्यों थी? इसकी वजह यह है, हजरत उस्ताद दामत बरकातुहुल आलिया फरमाते हैं कि एक ये इंसानी फितरत है, एक उस्ताद है वो पढ़ाता है, उसके स्टूडेंट्स में तालिब इल्म में उसके शागिर्दों में एक तालिब इल्म एक शागिर्द ऐसा है जिसकी उम्र बहुत छोटी है लेकिन हाफजा बहुत ज्यादा है। अल्लाह ने कुव्वते फहम अता फरमाई है, बात को लेता है, अक्स करने की सलाहियत है, अपने उस्ताद की बात को जल्दी महफूज करता है, बात को समझता है, याद करता है। और उस शागिर्द का, उस तालिब इल्म का वालिद वो है जो अपना सब कुछ उस्ताद पर कुर्बान करता है। अल्लाह ने माल दिया, माल कुर्बान कर दिया, अल्लाह ने दौलत दी, दौलत कुर्बान कर दी, इज्जत की नेमत उस्ताद पर कुर्बान है, यानी दुनिया की सारी चीजें वो उस्ताद पर कुर्बान कर देता है। शागिर्द वो है जो सबसे ज्यादा ज़हीन, शागिर्द वो है जो सबसे ज्यादा फहम का मालिक, शागिर्द वो है जो सबसे ज्यादा बात को अखज़ करने वाला, और वालिद वो है जो अपना सब कुछ उस्ताद पर कुर्बान करता है। अब उस्ताद के दिल में
इस शागिर्द की सबसे ज्यादा मोहब्बत का आना और उस शागिर्द के वालिद की सबसे ज्यादा मोहब्बत का आना, ये एक फितरी बात है। ला महाला उस्ताद इस शागिर्द से भी प्यार करेगा, ला महाला उस्ताद इसके वालिद से भी प्यार करेगा। यही कुछ मामला हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा और आपके वालिद हजरत अबू बकर सिद्दीक का है। अगर बात हजरत आयशा की जाए, हजरत आयशा ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात को लिया है, समझा है, महफूज किया है, अक्स किया है और उम्मत तक पहुंचाया है। उलमा ने लिखा है सहाबे किराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन में वो लोग जो मुहद्दिस थे, जिनको अहादीस पाक एक बड़ी तादाद में याद थी, जिन्हें हुफ़ाज़ हदीस कहा जाता है, उनमें हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा का नाम भी मौजूद है। उलमाए सियर ने, उलमाए अस्माउर रिजाल ने 2000 से ऊपर रिवायात बयान की हैं। तकरीबन 2210 रिवायात ऐसी हैं जो कुतुब अहादीस में हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से मनक़ूल है। और बात है मामला फाहमी की, बात को समझने की, अल्लाह के रसूल की बात के मंशा को समझने की, जिसे मुज्तहिद कहा जाता है, फुक़हा कहा जाता है। इस पर भी उलमा ने लिखा है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में वो 130 सहाबा जो मुज्तहिद थे, फ़क़ीह थे, मसाइल बताया करते थे, इज्तिहादी मसाइल में फतवे दिया करते थे, उन 130 सहाबा में नंबर 1 वो सहाबा हैं जिनके फतावा बहुत ज्यादा तादाद में है, मुकस्सिरीन। और नंबर 2 दूसरे नंबर पर वो है जो मुतवस्सितीन, उनके फतावा दरमियाने दर्जे के हैं। और एक है मुक़ल्लिलीन, बड़ी थोड़ी तादाद में उनके फतावा उम्मत में चले हैं। तो उलमा ने लिखा है वो सहाबा किराम जो मुज्तहिद थे, फतवा दिया करते थे, कुव्वत इज्तिहाद की नेमत अल्लाह ने अता फरमाई थी, और मुकस्सिरीन थे, यानी बड़ी तादाद में उन्होंने इज्तिहादी मसाइल को हल किया। उनमें एक नाम हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा का भी है। तो कुव्वत हाफिजा और इज्तिहाद, अख्ज़ की सलाहियत ये हजरत आयशा में मौजूद थी। और अगर बात आपके वालिद की जाए, खुद जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अमन्नास अलैया फी सुहबतिही व मालिही अबू बकर, फरमाते लोगों जितना फायदा मुझे अबू बकर के माल ने दिया, अबू बकर की सोहबत ने दिया, लोगों में से न किसी के माल ने इतना फायदा दिया, न ही किसी की सोहबत ने इतना फायदा दिया। ये हर वक्त मेरे साथ भी रहता है और सब कुछ मुझ पर कुर्बान भी करता है। एक हदीस पाक में फरमाया दुनिया में जिसने मेरे साथ एहसान किया, मेरे साथ भलाई की, मैंने सब का बदला दुनिया में दे दिया। मा खला अबा बकरिन, सिवाय अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के, इनके एहसानात का बदला अल्लाह क़यामत के दिन खुद अता फरमाएंगे। तो हजरत आयशा से सबसे ज्यादा मोहब्बत की वजह आपकी कुव्वत हाफिजा, ज़हानत, मामला फहमी, इज्तिहाद व इस्तिंबात है। और आपके वालिद हजरत अबू बकर से मोहब्बत की वजह इसलिए कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपना सब कुछ जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे निछावर और कुर्बान कर दिया। इसी तरह दीगर अहादीस में भी आपके फजाइल मौजूद है, मनाक़िब मौजूद है। मैं वक़्त की किल्लत की वजह से सिर्फ एक हदीस पाक उसका मफ़हूम आपके सामने अर्ज़ कर देता हूँ, जिसे हजरत इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्तदरक हाकिम की 5वीं जिल्द सफ़ा 13 हदीस नंबर 6790 पर नकल किया। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे चंद ऐसी खूबियाँ अता फरमाई हैं, अल्लाह ने मुझे चंद ऐसे कमालात अता फरमाए हैं, अल्लाह ने मुझे चंद एक ऐसे फज़ैल अता फरमाए हैं जो मेरे अलावा अल्लाह ने किसी को अता नहीं फरमाए। नंबर 1, निकाह से पहले हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेरी सूरत और मेरी तस्वीर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाई, ये बताने के लिए कि या रसूल अल्लाह ये आयशा बिनते अबू बकर आपके निकाह में आने वाली है। नंबर 2 फरमाते मेरी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब मुझसे निकाह फरमाया उस वक़्त मेरी उम्र 7 साल थी। इतनी छोटी उम्र में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी औरत से, किसी खातून से निकाह नहीं फरमाया, ये सिर्फ मेरा एजाज है। नंबर 3 जब मेरी रुखसती हुई उस वक़्त मेरी उम्र 9 साल थी। इतनी छोटी उम्र में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी और खातून से, किसी और औरत से निकाह नहीं फरमाया। नंबर 4 फरमाते अज़वाज मुतहरात में ये मुझे एजाज हासिल है कि अल्लाह के रसूल की बीवियों में वो मैं वाहिद बीवी हूँ, वाहिद ज़ौजा हूँ जो बाकरा होने की हालत में
कंवारी होने की हालत में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अक़्द निकाह में आई हूँ। इसके अलावा जितनी भी थी वो बेवा थी, मुतलका थी। कोई और खातून ऐसी नहीं है जो कंवारी होने की हालत में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अक़्द निकाह में आई हो। नंबर 5, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे बिस्तर पर होते थे। इसी हालत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह वही नाजिल फरमाते थे। ये मेरा एजाज है। नंबर 6, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा मोहब्बत मुझसे फरमाते थे। नंबर 7, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरी बरात के लिए, मेरी इफ़्फ़त और पाक दामनी को बयान करने के लिए कुरान करीम की आयात उतारी है। ये मेरा एजाज है। नंबर 8, मैंने जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा है। और नंबर 9, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल पर मलाल, आपकी वफात हसरत आयात हुई तो आप मेरे हुजरे में थे, मेरे घर में थे, मेरे मकान में थे, मेरी गोद में थे। इस हालत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई, आपका इंतकाल पर मलाल, वफात हसरत आयात हुई। तो इस हदीस पाक में ये 9 फजीलतें आपकी बयान की गई हैं हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की। इसके अलावा सहाबा किराम, हजरत ताबीन रहमहुमुल्लाह, इनसे भी आपकी फजीलत मनकूल है। इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने सुनन तिरमिज़ी की दूसरी जिल्द सफ़ा 707 पर नकल किया। सहाबी रसूल हजरत अबू मूसा अशरी फरमाते हैं, सहाबे किराम को जब भी कोई मुश्किल मसला पेश आया जिसका हल हमसे नहीं होता था, फसअलना आयशा, हम हजरत आयशा के पास जाते, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मसला पूछते, वजदना इंदहा मिन्हु इल्मा। ये ऐसा नहीं होता कि हम हजरत आयशा के दरवाजे पे जाएं और हमें मसले का हल न मिले। हमें जब भी मुश्किल पेश आती मसाइल के मामले में तो हम हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दरवाजे पे जाते। मुस्तदरक के हाकिम की 5वीं जिल्द सफ़ा 14 पर है, हजरत उर्वा बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने हलाल व हराम, इल्म, शायरी और तिब में हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बड़ा आलिम नहीं देखा। आप इस मामले में सबसे बड़ी आलमा थी। इमाम हाकिम ने मुस्तदरक के हाकिम की 5वीं जिल्द सफ़ा 18 पे मशहूर ताबी हजरत इमाम ज़ोहरी रहमहुल्लाह से नकल किया। आप फरमाते हैं, अगर अज़वाज मुताहरात समेत तमाम लोगों के उलूम को इकट्ठा किया जाए, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इल्म इन तमाम से ज़्यादा है। इमाम हाकिम रहमहुल्लाह ने मुस्तदरक के हाकिम की 5वीं जिल्द सफ़ा 18 पे हजरत अता रहमहुल्लाह से नकल किया। आप फरमाते हैं हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तमाम लोगों में सबसे ज़्यादा फ़क़ीहा और सबसे बड़ी आलमा थी और सबसे अच्छी राय वाली थी। सबसे बड़ी आलमा, सबसे बड़ी फ़क़ीहा, सबसे अच्छी राय वाली थी। इस हदीस पाक और असर से जहां हजरत आयशा की फ़क़ाहत साबित होती है, आपके इल्म का इजहार होता है, वहां यह बात भी साबित होती है कि मुज्तहिद और फ़क़ीह का साहिब राय होना ये उसका कमाल होता है। मुज्तहिद हो और साहिब राय न हो ये उसकी ऐब होता है, और मुज्तहिद का साहिब राय होना ये उसका कमाल होता है। हजरत आयशा मुज्तहिद भी थी, फ़क़ीहा भी थी, आलमा भी थी, साहिब राय भी थी। हजरत इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में लोग सवाल करते हैं, एतराज़ करते हैं, जिस इमाम की तुम बात मानते हो वो तो साहिब राय है। हम कहते हैं हजरत आयशा भी साहिब राय थी, इसलिए कि हजरत आयशा भी फ़क़ीहा, इमाम साहब भी फ़क़ीह। मुज्तहिद और फ़क़ीह का साहिब राय होना ये कमाल की बात होती है, ये ऐब की बात नहीं होती। इमाम इब्न साद रहमतुल्लाह अलैह ने अत-तबक़ातुल कुबरा की दूसरी जिल्द सफ़ा 286 पे हजरत मसरूक रहमहुल्लाह से नकल किया। किसी ने पूछा कि हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इल्म फ़राइज़ जानती थी, तो आपने कसम उठाकर फरमाया, मैंने बड़े बड़े सहाबा को देखा वो मिरास के मसाइल के लिए हजरत आयशा के दरवाजे पर हाजिर होते थे। तो ये चंद एक आसार मैंने अर्ज किए जिनसे हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की फजीलत बयान होती है, फजीलत का तज़किरा मिलता है। बाकी हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस उम्मत के साथ कई एक एहसानात फरमाए। अल्लाह के रसूल की घरेलू जिंदगी जो उम्मत के मर्दों से पोशीदा थी, हजरत आयशा ने उसे महफूज किया और उम्मत तक अल्लाह के रसूल की घरेलू और निजी जिंदगी को पहुंचाया, ताकि अगर कोई शौहर है उसे मालूम होना चाहिए बीवियों के साथ बर्ताव क्या किया जाता है, इबादत घर में कैसे की जाती हैं, मामलात को कैसे चलाया जाता है, जिनकी तादाद मैंने बताई 2000 से ऊपर है। 2210 अहादीस हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस उम्मत तक पहुंचाई हैं।
اور اگر اس امت کو تیمم والی نعمت ملی ہے، پانی موجود نہ ہو، مٹی کے ذریعے طہارت حاصل کرنا، بخاری شریف باب التیمم کی روایت کے مطابق یہ تیمم والی نعمت جو اس امت کو ملی ہے، اس تیمم والے حکم کے اترنے کا ذریعہ اور سبب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بنی ہے۔ حضرت عائشہ کی برکت سے امت کو تیمم والی نعمت بھی عطا ہوئی ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی محبوبہ بیوی ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو حضور کے حرم میں بھیج کر اللہ کے رسول کی بیوی بنا کر ایمان والوں کی ماں ہونے کا، ام المومنین ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنے بلند مقام پر فائز تھی، اتنے بلند مقام پر فائز ہونے کے باوجود آپ کے دل میں خدا کا خوف کتنا تھا، آخرت کا ڈر کتنا تھا، اس پر صرف ایک روایت سماعت فرما لیں، جسے حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے تفسیر الدر المنصور سورہ ابراہیم کی آیت یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت کے تحت نقل کیا۔ حضرت عائشہ اللہ کے رسول سے پوچھتی ہیں، یا رسول اللہ، اس امت کو قبر میں آزمایا جاتا ہے، قبر میں سوال و جواب ہوتے ہیں، منکر نکیر آتے ہیں، فکیف بی وانا امرات ضعیفۃ، حضور میرا کیا بنے گا، میں تو عورت ہوں، کمزور ہوں۔ یہ ام المومنین کہہ رہی ہے، صدیقہ بنت صدیق کہہ رہی ہے، اللہ کے رسول کی بیوی کہہ رہی ہے، جن کے جنتی ہونے میں شک نہیں ہے، وہ کہہ رہی ہیں حضور میرا کیا بنے گا، میں تو عورت ہوں، کمزور ہوں۔ اللہ کے رسول نے سورہ ابراہیم کی یہی آیت تلاوت کی، فرمایا عائشہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، پریشان نہیں ہونا، اللہ ایمان والوں کو دنیا کی زندگی میں بھی ثابت قدمی عطا فرماتے ہیں، اور دنیا کی زندگی کے بعد آنے والی زندگی میں بھی اللہ ان کو ثابت قدمی عطا فرمائیں گے۔ تو اس حدیث پاک سے جہاں حضرت عائشہ کے خوف خدا کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے، خوف خدا کا ثبوت ملتا ہے، وہاں یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ موت کے بعد فنائیت نہیں ہے، موت کے بعد حیات ملتی ہے۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے سوال و جواب کے بارے میں بطور دلیل کے استدلال کے اس آیت کریمہ کو تلاوت کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زندگی کے ایام مکمل کرنے کے بعد سن 58 ہجری 17 رمضان المبارک کو اس دنیا سے آپ نے رحلت فرمائی، اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ نماز تراویح، نماز وتر سے فارغ ہونے کے بعد محدث امت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھی، اس کے بعد آپ کو دفن کیا گیا۔ آپ کی وفات کے بعد امت کی حالت کیا تھی، امت کو کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، امت کتنی رجیدہ تھی۔ الطبقات الکبریٰ میں امام ابن سعد نے 8ویں جلد صفحہ 61 اور 62 پہ نقل کیا، حضرت عائشہ کی وفات کے بعد ایک بندہ مدینہ منورہ سے باہر کسی جگہ پر گیا تو وہاں کے کسی بندے نے پوچھا کہ حضرت عائشہ کی وفات پر امت کی حالت کیا تھی، صحابہ اور تابعین کی کیا حالت تھی؟ تو اس جنازے میں شریک شخص نے بتایا، جو اس جنازے میں شریک شخص نے جواب دیا، کہنے والے نے کہا کہ جس کی حضرت عائشہ ماں تھی وہ سارے کے سارے غمزدہ تھے، جس کو حضرت عائشہ سے پیار تھا وہ انہیں اپنی ماں سمجھتا تھا، ان سے ماں والا رشتہ جوڑ کر، بیٹے والا رشتہ جوڑ کر اپنی نجات سمجھتا تھا، وہ سارے غمزدہ تھے۔ معلوم ہوا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت وہی کرے گا آپ کے ایمان، اجتہاد، فقاہت، علم حدیث، اسے وہی تسلیم کرے گا جو حضرت عائشہ کو ماں مانے گا، نبی کی بیوی مانے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری زندگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے محنت کی، اللہ کے رسول سے دین کو سیکھا اور امت تک اس دین کو عام فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس امت پر اتنے احسانات ہیں، اگر ہم ان کا بدلہ دینا بھی چاہیں نہیں دے سکتے، بس اتنا ہم کہتے ہیں اللہ رب العزت اپنی طرف سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے احسانات کا بدلہ جنت کی نعمتوں کی صورت میں ہماری طرف سے اللہ انہیں عطا فرما دے، رضی اللہ عنہا، اللہ ان سے راضی بھی ہو جائے، اللہ رب العزت ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام بھی عطا فرمائے، اور ہمیں ان کے حلالی بیٹے بن کر ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے دین کے تحفظ،
دین کی اشاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں شورش کشمیری رحمہ اللہ نے جو چند اشعار کہے تھے وہ بھی آپ سماعت فرما لیں۔ آپ کہتے ہیں: ہو میرے ماں باپ قرباں اس مقدس نام پر، عائشہ کے سینکڑوں احسان ہے اسلام پر، جس کی عفت کی گواہی دی کلام اللہ نے، جس کی غیرت کے نشاں ہیں دامن ایام پر، جس کو بخشا تھا پیغمبر نے حمیرہ کا لقب، مہر و ماہ کی رونقیں قربان اس کے نام پر، جس پہ باندھا تھا خدا کے دشمنوں نے اتہام، آج تک انسان شرمندہ ہے اس الزام پر، ہم گناہگاروں کا شورش کون ہے اس کے سوا، خواجہ کونین کی رحمت ہے خاص و عام پر۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ازواج مطہرات، صحابہ کرام، آل رسول، جس کا تعلق اللہ کے رسول کے ساتھ ہے، ان کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر